गुड आफ्टरनून। बाकी सबको ज्वाइन करने बोलो। असाइनमेंट ओके, लेट्स स्टार्ट। चलिए मैम, नोट्स हम लोग पास बाकी सब कहाँ है? खाली 4 जन। रुको, ग्रुप में लिखते हैं। थोड़ा सा वेट करते हैं और 1-2 जन ज्वाइन कर जाएगा तो फिर स्टार्ट करता है। मॉड्यूल में अटेंडेंस दे दिए हो तुम लोग? मॉड्यूल में अटेंडेंस दे दिए हो? यस मैम। यस। ओके, तो शुरू कर देते हैं। फिर जिन लोगों को ज्वाइन करना होगा उन लोग करेगा धीरे धीरे। तो ऐसे ही चला गया। एनीवेज, तो आज नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज सिंगल साइडमैन सप्रेस कैरियर सिस्टम और एसएसबीएससी सिस्टम और एसएसबीएससी मॉड्यूलेशन, व्हाटएवर हम लोग इसको बोल सकते हैं। सो हम लोगों ने क्या देखा कि मॉड्यूलेशन का जो स्कीम था, स्पेशली एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का। अच्छा, वॉइस क्लियर है मेरा? वॉइस क्लियर है? यस मैम। ओके। सो जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का जो स्कीम था, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का स्कीम में हम लोग देखे कि एट फर्स्ट इन प्रिलिमिनरी कंडीशन वी यूज्ड टू modulate both my modulating signal and my carrier signal, and we used to send that whatever we are getting after from that modulation, means the amplitude modulated wave, that wave we are sending by a transmitting antenna over the carrier, over the medium or over the channel, and we used to receive that wave or that AM wave at the receiver end. So in this case, in fact, in this particular case, we used to observe that the total information, whatever information content have in that particular signal,
is only concentrated in the upper and lower sidebands of the modulated wave. The carrier component doesn't have any message information. Okay, so that's why we modified that signal, or we can say that we have already modified that technology, and we discard that carrier before sending or before transmitting over the channel. So we get whatever, and so we get a new technology that is known as the DSB-SC, or double sideband suppressed carrier system, where we used to send both the upper and lower sidebands of the modulated wave, but we doesn't send the carrier. Okay, we used to suppress the carrier and only send the upper and lower sidebands. Fine. So, we also observed another thing, and that is the message content, or the amount of message whatever present in the upper and lower sideband are equal. Okay, means both upper and lower sideband have the same amount of information content, and we only need the information content. So instead of sending this information, or instead of sending, we can say that instead of sending this both upper and lower sideband, as we can observe that both the sideband contain the same amount of information, so double amount of information sending over the channel is unnecessary thing. It's an unnecessary thing. So we can say that because my main resource, that is the bandwidth, its bandwidth is limited, and there is a crisis of the bandwidth total available. There is a crisis of total available bandwidth. That's why obviously it's feasible for us to use the bandwidth in an efficient way or in an effective way. And beside this thing, means crisis of bandwidth, which is a most important parameter or important resource for communication system, any kind of communication system. It may be a wireless communication, it may be a satellite communication, but the main resource, that is the bandwidth, is very important resource, or the main resource of any communication system. And beside this problem, we can observe that transmitting, for the transmission of the both upper and lower sideband, the power requirement is also double. Isn't that true? So if the power requirement is also double, so obviously we need to use power also in an efficient way. So that's why we thought that instead of sending this both upper and lower sideband, if we used to send only single sideband without any carrier, it is feasible to us. Or on the other way, we can say that we can extract the information, or we can reconstruct the baseband signal from the modulated wave if and only if we send only single sideband and suppress another sideband and the carrier also. Okay, so this scheme or this type of modulation, where we used to send only single sideband of the modulated wave and used to suppress the another sideband as well as the carrier, is known as the single sideband suppressed carrier modulation system. Okay, so let me take. এক সেকেন্ড একটু দরজাটা কেউ টেনে দেবে? So this is the main thing, why we used to send only single sideband, suppressing another sideband and suppressing or discarding the carrier part also.
Fine. So let's see what's written over here. As we all as we have already seen that in aim already see in the both aim and DSBSC modulation that there is a wastage of bandwidth in both the cases. They need a transmission bandwidth equal to twice the message signal bandwidth. Obviously, जितना ट्रांसमिशन बैंडविड्थ का मेरा रिक्वायरमेंट था उससे मेरा मैसेज सिग्नल का बैंडविड्थ डबल है। क्यों? मैसेज सिग्नल का बैंडविड्थ कौन सा है? जो कि मेरा इंफॉर्मेशन कंटेंट है, जो एम वेव हमको मिल रहा है या फिर एम सॉरी डीएसबी वेव जो हमको मिल रहा है उसका जो बैंडविड्थ है दैट इज ट्रांसमिशन बैंडविड्थ। और जो मैं वो क्या है मेरा सिग्नल का मैसेज सिग्नल का बैंडविड्थ है। और ट्रांसमिशन बैंडविड्थ कितना है? ट्रांसमिशन बैंडविड्थ है सिर्फ उतना ही जितना मेरे को ट्रांसमिट करने से चलेगा। ठीक है, तो उससे डबल है क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं कि दोनों साइड बैंड्स को बोथ द अपर एंड लोअर साइड बैंड्स दोनों साइड बैंड को हम लोग ट्रांसमिट कर रहे हैं। सो दैट इज द वेस्टेज ऑफ बैंडविड्थ हम लोग बोल सकते हैं। इन बोथ द केसेस one half of the transmission bandwidth is occupied by the upper sideband of the modulated signal, whereas another half is occupied by the lower sidebands. Obviously, अगर जो मेरा total bandwidth है वो दोनों sidebands के लिए होगा. However, the lower and upper sidebands are uniquely related to each other by a virtue of their symmetry about the carrier frequency. And this means that as far as the transmission of information is concerned, only one sideband is necessary. और बेसिकली वही है कि जो दोनों साइड बैंड्स है दोनों साइड बैंड्स में सेम अमाउंट इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होने के कारण हम लोग को खाली एक ही साइड बैंड भेजने से ही काम चल जाएगा। Thus, if the carrier and one of the two sidebands are suppressed at the transmitter, no information is lost, obviously. So, modulation of this type, which provides a single sideband with suppressed carrier, is known as single sideband suppressed carrier system. And thus, SSBSC system reduces the transmission bandwidth by half. कि सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए जितना बैंडविड्थ का रिक्वायरमेंट है वो टोटली कट हो जा रहा है, शार्पली कट हो जा रहा है कितना? बाय हाफ. एंड दिस मींस इन अ गिवन फ्रीक्वेंसी बैंड वी कैन अकोमोडेट ट्वाइस नंबर ऑफ चैनल्स बाय यूजिंग अ सिंगल साइडबैंड इन द प्लेस ऑफ बोथ साइडबैंड. ऑब्वियसली अगर एक इंफॉर्मेशन को या फिर एक वेव को भेजने के लिए हमको हाफ अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसीज का या फिर रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज का जरूरत पड़ेगा, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो मेरा जो चैनल का जो लेंथ है या फिर चैनल का जो विड्थ है, नॉट लेंथ, चैनल का जो विड्थ है, चैनल का विड्थ कितना हो गया? हाफ हो गया. तो चैनल का विड्थ अगर हाफ हो जाएगा तो डबल नंबर ऑफ चैनल्स को हम लोग अकोमोडेट कर पाएंगे वो सेम अवेलेबल बैंडविड्थ में, ठीक है, या फिर फ्रीक्वेंसी बैंड में. अब देखो एडवांटेज डिसएडवांटेज हम लोग को देखना पड़ेगा. डिसएडवांटेजेस के बारे में अगर देखेंगे तो मेन एडवांटेज ऑफ SSBSC मॉड्यूलेशंस आर रिडक्शन इन द ट्रांसमिशन बैंडविड्थ. ऑब्वियसली दिस इज द मेन एम ऑफ SSBSC ट्रांसमिशन. तो SSBSC ट्रांसमिशन का जो मेन एम है कि मेरा जो जितना बैंडविड्थ का रिक्वायरमेंट था वो मेरा आधा हो जा रहा था. तो इसीलिए क्या होगा कि इसमें क्या ऑब्वियसली ये क्या होगा, बैंडविड्थ का यूज का जो एफिशिएंसी होगा वो काफी हाई होगा फॉर द SSBSC मॉड्यूलेशन. सेकंड इज पावर सेविंग. सिंस द हाई पावर कैरियर एंड वन साइडबैंड आर नॉट बीइंग ट्रांसमिटेड, ठीक है, ऑब्वियसली पावर का भी सेविंग है. Second, the drawback. The main drawback of SSBSC modulation is that it is expensive and highly complex to implement. अब देखो मतलब ये एक कॉमन सेंस का बात है कि जब कभी भी टेक्नोलॉजी एडवांस होता है या फिर यूजर फ्रेंडली होता है उसमें क्या होता है, जो मेरा सर्किट कनेक्शंस होता है वो उतना कॉम्प्लेक्स होते जाता है और उतना एक्सपेंसिव होते जाता है. और जब हाईली कॉम्प्लेक्स हो जाएगा तो वो हार्ड टू इम्प्लीमेंट भी हो जाएगा. ठीक है, तो
दिस इज तो एसएसबीएससी ट्रांसमिशन, क्योंकि हम लोग देखें कि अभी तक हम लोग जितना टाइप ऑफ एएम वेव्स देखे सभी में क्या है, तीनों टाइप ऑफ एएम में से एसएसबीएससी जो है वो सबसे हाईली एफिशिएंट है। तो ऑब्वियसली ये अगर हाईली एफिशिएंट है तो उसके साथ साथ ये हाईली एक्सपेंसिव भी है कंपैरिजन टू अदर टू टाइप्स, वो एफिशिएंट भी है। और अगर कॉम्प्लेक्स इसका जो सर्किट होगा वो सर्किट भी कॉम्प्लेक्स होगा, जिसके कारण इसको इम्प्लीमेंट करने में भी थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी को हम लोग को फेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो नाउ लेट्स सी द फ्रीक्वेंसी डोमेन डिस्क्रिप्शन, या फिर इसका जो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम है उसको हम लोग देख सकते हैं। तो पहला जो डायग्राम तुम लोग को दिख रहा है, पहला डायग्राम में हम लोग क्या देख सकते हैं, ये क्या है, दिस इज माय मैसेज सिग्नल। ये डायग्राम तुम लोग ऑलरेडी एक बार क्यों दो बार देख चुके हो। एक बार डीएसबीएससी में, क्योंकि हम लोग काम तो सेम चीज के ऊपर कर रहे हैं ना, जो मेरा बेसिक एम है, बेसिक एम के ऊपर कर रहे हैं। तो बेसिक एम के ऊपर कर रहे हैं तो ऑब्वियसली एकदम इनिशियल में मेरा एक सेम मैसेज सिग्नल होगा, एक मेरा सेम कैरियर होगा। तो जो पहला डायग्राम तुम लोग को दिख रहा है वो क्या है, दिस इज माय मैसेज सिग्नल और दिस इज माय बेस बैंड सिग्नल। फाइन, सो नेक्स्ट this is what, this is the DSBSC spectrum। याद करके देखो कि एक कैरियर था जो कि एक कैरियर था, और कैरियर के साथ जब हम लोग ऊपर का जो बेसबैंड सिग्नल है उस बेसबैंड सिग्नल को जब हम लोग मॉड्यूलेट कर रहे थे, तो मॉड्यूलेट करने के बाद हम लोग को जो डबल साइडबैंड सप्रेस कैरियर सिस्टम मिला। इसमें क्या हुआ कि यहाँ पे हम लोग कैरियर को, ये है जो बीच में है, दिस इज द कैरियर, और ये दोनों साइड में क्या है इसका मॉड्यूलेटिंग, तुम्हारा दोनों साइड बैंड्स है। वो क्या है, मेरा दोनों साइड बैंड्स है। तो दोनों साइड बैंड को क्योंकि हम लोग भेज रहे हैं, अच्छा ये पास, तो ये दिस इज द नेगेटिव वाला फ्रीक्वेंसी, तो विच इज नॉट यूजफुल इन द प्रैक्टिकल सिनेरियो। सो दिस इज द दोनों साइड बैंड्स, और ये कैरियर, तो हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर को हम लोग क्या करते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर को हम लोग सप्रेस कर देते हैं, उसको हम लोग नहीं भेजते हैं, और क्या करते हैं, सिर्फ दोनों साइड बैंड्स को हम लोग भेजते हैं। सो और उसके बाद क्या होगा, तो दिस इज द स्पेक्ट्रम ऑफ डीएसबीएससी वेव, और हम लोग को क्या है अभी कंसंट्रेशन कहाँ पे करना है, एसएसबीएससी में। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो मेरा दोनों साइड बैंड्स है, दोनों साइड बैंड में से हम लोग एक साइड बैंड को सप्रेस कर देंगे, और ओनली जो दूसरा साइड बैंड है उस दूसरा साइड बैंड को भेजेंगे फॉर एसएसबीएससी ट्रांसमिशन। तो सी, this is only the upper sideband and this is only the lower sideband। ठीक है, दिस इज द अपर साइडबैंड एंड दिस इज द लोअर साइडबैंड। तो देखो इस स्पेक्ट्रम का खाली एनालिसिस किया गया है इन द स्पेक्ट्रम ऑफ बेसबैंड और द मैसेज सिग्नल एक्सटी। पहले है मेरा मैसेज सिग्नल एक्सटी का जब हम लोग फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में उसको कन्वर्ट करेंगे या फिर उसका जब फूरियर ट्रांसफॉर्म करेंगे तो एसटी मेरा किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, वो एक्स ओमेगा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वही चीज को बोला गया है स्पेक्ट्रम ऑफ डीएसबीएससी wave which is obtained by taking the product of xt into ct। obviously ct क्या है, ct is my carrier signal, contains both upper sideband as well as the lower sideband। here we can see this is upper sideband as well as the lower sideband, and when as for the SSB system it has been observed that either upper or lower sideband is transmitted into the system, thus the ऑब्वियसली एसएसबी में हम लोग या तो अपर साइडबैंड या तो लोअर साइडबैंड दोनों में से कोई एक को भेज सकते हैं। एंड दस द एसेंशियल फंक्शन ऑफ एसएसबी मॉड्यूलेशन इज टू ट्रांसलेट द स्पेक्ट्रम ऑफ द मैसेज सिग्नल टू अ न्यू लोकेशन इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन। ऑब्वियसली ये न्यू लोकेशन है कि नहीं, जो स्पेक्ट्रम है वो या तो इस साइड में रहेगा या तो इस साइड, मतलब या तो यहाँ पे या तो यहाँ पे। Since we are transmitting the frequencies only in the range of omega c plus omega m or omega c minus omega m, the transmission bandwidth for the SSB-SC will be like this। तो अब क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, दोनों में से कोई भी एक को, तो मेरा बैंडविड्थ कितना हो जाएगा, पहले हम लोग क्या देख रहे थे, ट्वाइस ऑफ ओमेगा एम हो रहा था, लेकिन अभी अगर हम लोग इसका एनालिसिस करेंगे तो ओमेगा सी
और ये मेरा क्या है कैरियर का, तो यहाँ से हो गया ओमेगा ए और यहाँ से भी हम लोग को मिल गया ओमेगा एम। दिस इज एग्जैक्टली हाफ ऑफ द बैंडविड्थ ऑफ द डीएसबीएफसी और डीएसबीएफसी मॉड्यूलेशन मॉड्यूलेटेड वेव। ठीक है, ये जो ट्रांसमिशन बैंडविड्थ है वो दोनों का से मेरा हाफ है। नाउ द मेथड्स ऑफ जनरेशन, अब जो मेरा डीएसबीएससी वेव है, सॉरी एसएसबीएससी वेव है, सिंगल साइड वाइज सप्रेस कैरियर सिस्टम का जो वेव है, इस वेव को हम लोग कैसे जनरेट कर सकते हैं, या फिर हम लोग इसको बोलेंगे कि मॉड्यूलेशन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, कि एसएसबीएससी वेव जनरेट करने के लिए या फिर इस स्कीम में कैसे हम लोग मॉड्यूलेशन करते हैं। सो दिस आर मेथड्स ऑफ जनरेशन ऑफ एसएसबी मॉड्यूलेटेड वेव। तो पहला जो मेथड है दैट इज द फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेशन मेथड, कि फ्रीक्वेंसी को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब अलग अलग कर देंगे। डिस्क्रिमिनेशन मतलब क्या है, दोनों में से भेदभाव करना। तो डिस्क्रिमिनेशन मतलब अब हम लोग देखेंगे कौन सा अपर साइड बैंड है, कौन सा लोअर साइड बैंड है, और हम लोग अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से या तो अपर साइड बैंड को भेजेंगे या तो लोअर साइड बैंड को भेजेंगे। So this method can be used for generating the SSB modulated wave if the message signal satisfies the following condition. अब यहाँ पे या फिर इस पर्टिकुलर मेथड को हम लोग यूज कर सकते हैं अंडर सम बाउंड्री कंडीशन। वो क्या है, द मैसेज सिग्नल शुड नॉट हैव एनी लो फ्रीक्वेंसी कंटेंट। मैसेज सिग्नल में बहुत ज्यादा लो फ्रीक्वेंसी कंटेंट कुछ नहीं होगा। द ऑडियो सिग्नल्स possess this property, that is the telephone signal will have a frequency range extending from 300 Hz to 3.4 kHz. The frequencies in the range of are 0 to 300 Hz are absent. अब यहाँ पे क्या है कि हम लोग क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग जो लो फ्रीक्वेंसी है या फिर जो मेरा मैसेज सिग्नल है उसको हम लोग बेसबैंड सिग्नल बोल रहे हैं। तो यहाँ पे उससे भी कम फ्रीक्वेंसी का कोई सिग्नल नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग एलपीएफ यूज करेंगे। तो एलपीएफ अगर यूज करेंगे तो उससे भी अगर कोई लो फ्रीक्वेंसी रहेगा जो कि मेरा सिस्टम के लिए या अनवांटेड है, जो कि मेरा नेसेसरी नहीं है, वो भी अगर पास हो जाएगा तो वो क्या होगा, वो एज एन नॉइज ट्रीट करेगा उसको। तो इसीलिए क्या है कि हम लोग का एक बाउंड्री कंडीशन क्या है कि जो मेरा ऑडिबल फ्रीक्वेंसी का जो रेंज है या फिर ऑडिबल सिग्नल का जो रेंज है उससे कम रेंज का कोई फ्रीक्वेंसी उस पर्टिकुलर सिग्नल में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। एंड द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इन द स्पेक्ट्रम ऑफ द मैसेज सिग्नल इज ओमेगा हर्ट्ज शुड बी मच स्मॉलर देन द कैरियर फ्रीक्वेंसी एफसी। और क्या है, जो मेरा हायर फ्रीक्वेंसी होगा उस मैसेज सिग्नल का वो ओमेगा सी होगा, जो कि मेरा जो कैरियर फ्रीक्वेंसी है एफसी जो है उससे काफी कम होगा। तो देखो यहाँ पे मैसेज सिग्नल को हम लोग क्या कर रहे हैं, ये दिस इज माय ब्लॉक डायग्राम, आई थिंक एवरीवन कैन सी, आप लोग देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, सी दिस इज द ब्लॉक डायग्राम। यहाँ पे मैसेज सिग्नल है, यहाँ पे कैरियर है, मैसेज और कैरियर को दोनों को हम लोग मिक्सअप कर रहे हैं। तो मेरा क्या मिल हो रहा है, एक प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर है, प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर का जो आउटपुट है यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, डीएसबी एससी। अब उससे हम लोग क्या करेंगे, एक बैंड पास फिल्टर यूज करेंगे। बैंड पास फिल्टर से क्या होगा, वो या तो अपर साइड बैंड को या फिर लोअर साइड बैंड का पूरा जो रेंज है उसको भेजेगा, और बाकी जो आसपास का जितने भी सारे फ्रीक्वेंसीज है सबको वो सप्रेस कर देगा। So this is the block diagram of SSB-SC modulation. So from the block diagram you can see that this modulator consists of a product modulator, carrier oscillator. Obviously जो carrier signal है वो एक local oscillator से generate होगा, तो वो क्या है, उसको हम लोग carrier oscillator बोल रहे हैं। And the band pass filter designed to pass the desired side band, कौन से साइड बैंड को भेजना है उसका रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या करेंगे, बैंड पास फिल्टर में फीड करके रखेंगे, या फिर कोई कुछ बोल रहे हो या फिर उसको कट ऑफ के हिसाब से सेट करके रखेंगे। ओके, सो at the output of the product modulator we get the SBC modulator wave, which modulated wave which contains the two side bands only, obviously. जो मेरा दोनों साइड बैंड्स है वो अगर हम लोग कैरियर के साथ जब जो मेरा बेस बैंड सिग्नल है उसको अगर हम लोग मिक्सिंग कर रहे हैं तो मतलब क्या हो रहा है, एक नॉर्मल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हो रहा है। तो एम्पलीट्यूड नॉर्मल या फिर हम लोग बोल रहे हैं डीएसबीएससी हो रहा है कि
प्रोडक्ट मॉडरेटर में क्या होता है कि जो मेरा कैरियर होता है उसको सप्रेस कर देता है. तो इन दिस वे वी कैन से दैट द DSPSC modulator we have contains only two sidebands. ठीक है. The baseband filter will pass only one of the sidebands and produces a SSB modulated wave at its output. और क्या है, हम लोग जो बैंड पास फिल्टर यूज कर रहे हैं, बैंड पास फिल्टर क्या करता है कि सिर्फ एक ही साइड बैंड को, जिस साइड बैंड के ऊपर कट ऑफ सेट किया हुआ है, साइड बैंड का बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज को ही सिर्फ पास करता है, बाकी सबको सप्रेस कर देता है. So here we can say the spectrum of message signal and product modulator output. तो अगर प्रोडक्ट मॉडुलेटर का अगर हम लोग आउटपुट देखेंगे तो प्रोडक्ट मॉडुलेटर का आउटपुट कुछ इस तरीके से है. जस्ट अ सेकेंड. ओके. सो ये है मेरा प्रोडक्ट मॉडुलेटर का आउटपुट, जहां पे हम लोग देख सकते हैं कि मेरा दोनों साइड बैंड्स है, ये अपर भी है लोअर भी है. ठीक है. तो और ये जो डिफरेंस है यहाँ पे, डिफरेंस इज टू स्मॉल. ठीक है. फ्रॉम द स्पेक्ट्रम ऑफ द आउटपुट ऑफ द प्रोडक्ट मॉडुलेटर which contains both the side bands, the frequency difference between highest and frequency and the lower LSB, मतलब ये जो है LSB का हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है दिस वन, और ये जो यूएसबी का लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है दैट इज दिस वन. दोनों में जो डिफरेंस है वो बहुत स्लाइट डिफरेंस है. तो इससे क्या होता है कि मर्ज होने का जो चांसेस है वो काफी बढ़ जाता है. एंड द फ्रीक्वेंसी डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ LSB एंड द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ यूएसबी इज टू स्मॉल, जो कि हम लोग डायग्राम में देख सकते हैं. दिस मेक्स the design of band pass filter extremely difficult because its frequency response need to have very sharp change over from attenuation to pass band and vice versa. ठीक है. तो ऑब्वियसली क्या होता है कि अगर रेंज सेट करना है बैंड पास फिल्टर को, खाली अगर अपर बैंड और अपर साइड बैंड, लोअर साइड बैंड दोनों का, तो क्या है कि जो चेंजिंग होगा वो बहुत फास्ट करना होगा, जो कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है या फिर थोड़ा इम्पॉसिबल होता है फॉर डिजाइनिंग ऑफ बैंड पास फिल्टर. तो इसीलिए बैंड पास फिल्टर को भी कुछ बाउंड्री कंडीशंस के थ्रू जाना पड़ता है. पास बैंड ऑफ BPF should occupy the same frequency range as that occupied by the spectrum of the desired SSB modulated wave. तो इसीलिए जो हम लोग बैंड पास फिल्टर डिजाइन करते हैं, बैंड पास फिल्टर को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि जो मेरा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव है या फिर जो मेरा DSPSC वेव है, उसका अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड का जो फ्रीक्वेंसी का रेंज है, उस एग्जैक्ट रेंज में ही हम लोग क्या करते हैं कि उसको पास बैंड सेट करते हैं फॉर द BPF और द बैंड पास फिल्टर. The width of the guard band with spectrum, the pass band from the stop band be twice the lowest frequency component of the message signal. अब यहाँ पे क्या है, एक हम लोग गार्ड बैंड यूज करते हैं सो दैट मिक्सिंग ना हो जाए. और ये गार्ड बैंड का जो विड्थ होता है वो कितना होता है कि और ये क्या करता है, उसका जो गार्ड बैंड होता है इसका होता है ट्वाइस ऑफ F1. F1 क्या है, जो मेरा देखो यहाँ पे जो हम लोग बोल रहे हैं कि दिस इज F1, तो ट्वाइस ऑफ F1 रहता है, FC प्लस F1. तो जो पहला एक एंड होता है तो उसका डबल रहता है, मतलब FC टू F1 ये हो गया. तो जो गार्ड बैंड है ये दोनों हो गया. तो दीज टू आर द गार्ड बैंड. देखो अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड के बीच में ट्वाइस ऑफ F1 है, FC माइनस F1, FC प्लस F1.
तो इधर -f1 f1 दो साइड में f1 है, दिस इज द गार्ड बैंड, ये जो बीच का जगह है दिस इज द गार्ड बैंड, सो दैट अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड मर्ज अप ना हो जाए या फिर दोनों में कनेक्शन मिक्सअप ना हो जाए। सो दिस इज द फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेटर, फ्रीक्वेंसी को डिफरेंट अलग कर रहा है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेटर। सेकेंड इज टू स्टेज एसएसबी मॉडुलेटर, ठीक है। जो सेकेंड पार्ट है दैट इज टू, तो इसका डायग्राम देखो, डायग्राम अगर देखेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ से मेरा मैसेज सिग्नल है, दिस इज एक्सटी, दिस इज माय कैरियर, लोकली जनरेटेड, जो यहाँ के लिए एक लोकल ऑसिलेटर हमको लगेगा या फिर एक ऑसिलेटर लगेगा। दोनों को हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट मॉडुलेटर 1 में डाल रहे हैं। प्रोडक्ट मॉडुलेटर 1 में एक बार डालने से मेरा क्या होता है कि मेरा मॉडुलेशन हुआ, मॉडुलेशन होने के बाद बैंड पास फिल्टर जो है एक बार उसको दिए तो बैंड पास फिल्टर क्या किया, एक बैंड को ही पास किया, जिसके कारण मेरा क्या हुआ कि हम लोग देख पाए, इसके कारण मुझे एसएसबी एक बार मिला। उसके बाद इसको फिर से हम लोग एक बार कैरियर के साथ इसको मिलाएंगे, कैरियर के साथ मिलाने के बाद उसको फिर से हम लोग एक बार बैंड पास फिल्टर करेंगे। तो क्योंकि यहाँ पे हम लोग कंसेक्यूटिव 2 बार कर रहे हैं, दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ नोन एज टू स्टेज, 2 बार में किया जा रहा है, ठीक है। जो भी टोटल प्रोसेस है वो 2 बार किया जा रहा है। सो लेट्स सी when the carrier frequency is very high as compared to the measured frequency, the SSB modulated wave occupies the frequency band which is much higher than that of the message signal. And under such operation condition, it becomes extremely difficult to design the bandpass filter that passes the desired sidebands and attenuates the unwanted sideband. एक्चुअली क्या होता है कि इन सब केसेस हम लोग क्या देखते हैं कि जो मेरा कैरियर सिग्नल है वो इतना ज्यादा हाई हो जाता है, जिसके कारण क्या है कि जो डिफरेंस है बेसलाइन सिग्नल का और कैरियर सिग्नल का फ्रीक्वेंसी में जितना डिफरेंस है वो काफी ज्यादा रहता है। और इस कंडीशन में क्या है, हम लोग जो बीपीएफ डिजाइन करना होता है या फिर बीपीएफ का जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी रखना होता है, वो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी को जज करना है या फिर उस ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी में जो मेरा बैंड पास फिल्टर है उसको तुम्हारा डिजाइन करना काफी प्रॉब्लमेटिक हो जाता है और काफी हार्ड हो जाता है। So in that condition, we have to use the two-stage SSB modulator, which uses multiple modulation process. यहाँ पे क्या होता है कि एक से ज्यादा modulation process हम लोग यूज करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि मैसेज सिग्नल XT modulated the carrier F1 to the process to produce DSPAC signal. The signal is passed through a band pass filter and we can get the SSB modulated signal. Let the sidebands are F1 plus FM and F1 plus FM2 and assuming that the USB is selected. अगर USB को ही सिलेक्ट किया गया है तो मान लो ये 2 है। So the output of BPF1 is used to modulate another carrier F2 which is higher than F1. इससे क्या होता है कि एक्चुअली दोनों बार जो हम लोग मॉड्यूलेशन कर रहे हैं या फिर दोनों टाइप ऑफ कैरियर के साथ मिक्सिंग कर रहे हैं, उससे क्या है जो मैसेज सिग्नल है या फिर जो मेरा बेसलाइन सिग्नल है उसका जो फ्रीक्वेंसी है उस फ्रीक्वेंसी को हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं सो दैट कि मैसेज सिग्नल और कैरियर सिग्नल के बीच में जो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है या फिर जो गैप है वो थोड़ा कम हो सके। Here it may be noted that the guard band between the highest LSB frequency and the lowest USB frequency is increased. This will make the filter design easy. Thus, the two-stage SSB modulator will simplify the filter design. तो उससे मेरे को क्या होता है, ऑब्वियसली अगर दोनों साइड बैंड्स में डिफरेंस बढ़ेंगे
और जो कैरियर के साथ जो मेरा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल या जो मैसेज सिग्नल का जो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है वो अगर घटेगा तो उसके हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं कि मेरा जो बीपीएफ है या फिर जो मेरा बैंड पास फिल्टर है उस बैंड पास फिल्टर को हम लोग बहुत इजीली मतलब डिजाइन कर पाएंगे उस टाइप ऑफ बैंड पास फिल्टर। तो दिस इज द तो देखो दिस इज द स्पेक्ट्रम, ये हो गया मेरा फ्रीक्वेंसी बैंड और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं दिस इज द गार्ड बैंड एंड दिस इज अपर साइड बैंड, लोअर साइड बैंड एंड दिस इज द मैग्निफिकेशन। अगर हम लोग देखें तो दिस इज लाइक दिस, ठीक है। So from the spectrum of the two-stage SSB modulator, it can be proved that the mathematical expression for the SSB transmitter containing the this is the mathematical expression, ठीक है। So this is all about my SSB transmission and generation of SSB. Next day हम लोग डिस्कस करेंगे about the demodulation part or the demolition of SSB signal. Okay, so anybody have any confusion? किसी को कुछ बोलना है? Any query? Any query? ओके, अगर कोई क्वेरी नहीं है तो टाइम ऐसे में भी अप हो गया है। नेक्स्ट डे हम लोग करेंगे डिमॉड्यूलेशन ऑफ एसएसबी और अगर किसी का अभी तक मॉड्यूल में अटेंडेंस नहीं हुआ है तो काइंडली मॉड्यूल में अटेंडेंस आप लोग दे दे। अच्छा, और इस वीक में अच्छा और अटेंडेंस ये जो असाइनमेंट दिया हुआ है असाइनमेंट भी आप लोग जमा कीजिएगा क्योंकि इसके बाद हम उसका डेट एक्सटेंड नहीं करने वाले। ओके, सो थैंक यू एवरीवन। आज का क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। ओके, थैंक यू। You all may leave now.